یہ لادی گینگ جو اس وقت ڈیرہ غازی خان کے پورے ضلع میں خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آج جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کیا، یہ کیا کام کرتے تھے، یہ کس طرح جرائم کی دنیا میں آئے، پولیس ان کو کس طرح سپورٹ کرتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کون کون سی وارداتیں کی ہیں، کون کون سی وارداتیں ان کے اوپر ڈالے گئے ہیں، کون کون سے جو پولیس افسران ہیں جو ان سے براہ راست رابطے میں رہے اور ان سے بھتہ مانگتے رہے۔ میرے ساتھ یہ سب موجود ہیں۔ یہ شبیر لادی ہے، یہ محمد لادی کا بیٹا ہے جن کو توسا شریف میں پولیس نے مشکوک مقابلے میں قتل کیا، یہ ان کا بیٹا ہے، اور ان کے مطابق اپنے والد کے جو قتل کا جو مقدمہ ہے یہ بھی ان کے اوپر ڈالا گیا، اور جب ان کے بھائی کو جندانی گینگ نے مقابلے میں مارا ان کے قتل کا مقدمہ بھی انہی کے اوپر، یعنی کہ بھائی کے قتل کا مقدمہ اور باپ کے قتل کا مقدمہ بھی انہی کے اوپر درج ہوا، اور یہ 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ یہ توسا شریف میں اس وقت اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پر اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا ایک سرکاری اسکول میں۔ ان سے بات کرتے ہیں تفصیلاً۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جرائم کی دنیا میں کس طرح آئے ہیں؟ یہ جرم پیشہ ہمیں پولیس نے بنایا ہے۔ اچھا جی ہاں، اظہر چودھری، حفیظ بگٹی نے۔ آپ پہلے شروع میں بتائیں، شروع سے آپ پہلی دفعہ آپ لوگوں سے جو جرم ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ جرم ہمارے سے پہلی دفعہ یہ صدیق تھلوری والا ہوا ہے۔ اچھا، اظہر چودھری نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ صدیق تھلوری آ رہا ہے تمہارے مارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی 20 لاکھ پیسے بھی ان کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے بھائی 20 لاکھ سے 15 لاکھ خود اٹھاؤ، 5 لاکھ ہمیں دے دو۔ ٹھیک ہے جی ہم سے صدیق تھلوری کا قتل ہوا ہے، وہ خدا بھی معاف کرے گا انشاءاللہ، ہم بھی تو کریں گے۔ صحیح ہے 5 لاکھ اظہر چودھری کو ہم نے دے دیے تھے، 15 لاکھ ہم نے خود اٹھائے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ کے اوپر جو اتنے ساری 3 درجن کے قریب 30 سے زائد ڈکیتی کے مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، کیا آپ لوگ ان سب میں ملوث تھے یا آپ لوگوں کے اوپر زبردستی ڈالے گئے ہیں؟ نہیں، یہ پولیس نے جھوٹے FIR کیے ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اس میں ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صدیق تھلوری والا قتل ہم نے کیا ہے، یہ بھی ہمارے مرنے کے لیے آیا تھا، صحیح ہے، رائفل اس کے ساتھ بھی تھا۔ صحیح ہے۔ جی ہاں، اچھا، ان سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ یہ مختلف نوعیت کے یہ پولیس پر الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اہلکار ان کو خود اسلحہ دیتے ہیں، اور یہ جب بھی موٹر سائیکل ڈکیتی کرتے ہیں یا کچھ بھی ڈکیتی کرتے ہیں، یہ پولیس والے خود ان سے وہ چیز خریدنے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ 125 چوری کرتے ہیں یا ڈکیتی کرتے ہیں تو پولیس والے خود وہی موٹر سائیکل ان سے 60,000 میں خریدتے ہیں۔ میرے ساتھ یعقوب بھی موجود ہے، ان کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ روپے ہے۔ ان سے جانتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ حفیظ بگٹی جو ہے SP تھا یہاں پہ، وہ آپ لوگوں سے ملنے آیا تھا، کیا بات ہوئی تھی ان سے آپ کی؟ اس نے تو یہی کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو، پیش ہو جاؤ، ہم تمہارا انصاف کریں گے۔ اچھا، جب ہم نے کہا تو کچھ اور تم لوگ پھر اور کو اٹھاؤ گے ہمارے مارنے کے لیے؟ اس نے کہا تو نہیں، یہ تو وہ اس نے پھر کچھ کسی کو مارو تو کیسا کرو، میرے کو جب زندانیوں کو تم لوگ مارتے ہو تو پھر زندانی ہم کو پیسے دیتے ہیں، ہم زندانیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھ یہ کچھ افسر بڑے ایسا کچھ کام کرواتے ہیں، کچھ بڑے افسر ان کو جب پریشر دیتے ہیں تو یہ آ کر تو پھر مقابلہ SP بگٹی نے آپ لوگوں سے یہ بھی کہا ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ڈکیتی کرو، میرا حصہ دو۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں، کہتا ہے؟ ہاں کہتے ہیں آپ سے ملاقات میں یہ بات؟ ہاں، جب انکار کرتے ہیں تو اس لیے تو اتنے پرچے یہ لوگ کٹتے ہیں۔ صحیح ہے جی، تو آپ نے ان کی بات سنی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ SP بگٹی نے ڈائریکٹ ان سے پیسے مانگے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم لوگ ڈکیتیاں کرو، کچھ بھی کرو، تمہارے اوپر مقدمات درج نہیں ہوں گے، البتہ تم مجھے بھتہ دیا کرو۔ ان کے انکار پر ان کے اوپر آپریشن ہوا، ان کے گھر گرائے گئے، اور ان کا جو وہاں پر پانی کا کنواں تھا جس سے درائش فائدوں کے لوگ پانی پیتے تھے، اس کو مٹا دیا گیا۔ میرے ساتھ شبیر لادی موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے والد کو توسا شریف میں مقابلے میں مار دیا گیا، جی ہاں، تو کس نے ان کو مارا تھا؟ یہ اس کو عبدالرؤف صاحب نے مارا تھا۔ اچھا، جی ہاں، کہتے یہ ہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے عبدالرؤف نے یا مارا تھا یا کسی مخبر نے مارا تھا، کوئی معلوم نہیں ہے۔ اس کا FIR ہم پہ کیا ہے، پولیس والوں نے۔ جی ہاں، میرے بھائی مجید پہ کیا ہے۔ 9 آدمی بھائی محمد لادی کے ساتھ تھے، اور 9 آدمی، ایک دبئی میں ہے، ابھی تک دبئی میں اس کا کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی FIR کیا ہوا ہے۔
पुलिस अच्छा, वालों वो आपके वालिद के कत्ल के मुकदमे में ऐसा मुलजिम भी नामजद किया जो दुबई में काम करता जी है। हाँ, क्या दुबई नाम है में उसका? मुस्तफ़ा वल्द लद्दा। मुस्तफ़ा वल्द लद्दा। जी हाँ, अच्छा, आप ये बताएं कि आपके वालिद तौसा शरीफ में क्या काम करते थे वहाँ पे? वहाँ पे घर बना रहा था अपने हमारे लिए। जी हाँ, काम करते थे घर के लिए। सही है। वहाँ पे क्या मेहनत मजदूरी करते थे तौसा शरीफ में? मेहनत मुझे नहीं करता था, अपने घर बना रहा था सही बाबू है। जी। सही है। अच्छा, आप वहाँ पे पढ़ते थे? जी हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कौन सी क्लास में? 7 क्लास में, ये प्रेम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आप 7th क्लास का स्टूडेंट थे। जी हाँ। अच्छा, आप क्या बनना चाहते थे अगर आप इस जराइम की दुनिया में ना आते? तो आपका कोई मिशन था, कोई गोल्स थे आपके कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में आएंगे, आर्मी में जाएंगे? क्या आपका गोल था? हमारे पापा ने कहा था तुम फौज में जाओ। अच्छा, जी हाँ। आपके वालिद साहब ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग फौज में जाओ। जी हाँ। अच्छा, आपके पास ये पाकिस्तानी परचम भी है, मैं ये देख रहा हूँ सुबह से। आप ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी मनाई है? जी हाँ, हमने जिसने आज़ादी झंडा तो पास है, जिसने आज़ादी मनाया है। सही है। शहर तो हम नहीं जा सकते, पहाड़ पे मनाया है। पहाड़ में आप लोगों ने जश्न आज़ादी मनाया है। और इसके अलावा आपने इनकी जो बातें हैं वो सुनी हैं। इनका ये कहना है कि चौधरी अज़हर ने इनके पास एक बंदा भेजा था जिसका नाम अब्दुल सिद्दीक थलोरी था। उनको 20 लाख रुपए दिए थे और उनको कहा था कि जाओ तुम लोग लादियों को मार आओ। और उसके बाद इनको ये इत्तला दी थी कि तुम लोगों के पास अब्दुल सिद्दीक आ रहा है, उनके पास 20 लाख रुपए हैं, उन 20 लाख में से 15 लाख अपने पास रख लो और 5 लाख मेरे लिए भेजो और उसके बाद तुम उनको बेशक कत्ल कर दो। और इनका ये कहना है कि उनसे ये गलती हुई थी क्योंकि इन्होंने उस शख्स को अपने दफा के लिए मारा था। और उसके बाद इनका ये कहना है कि डकैती की जितनी भी वारदातें होती हैं वो सब के सब ये नहीं करते और ये लोग महीने में 1 या 2 बार जाकर डकैती करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये अपने घर का, अपने बच्चों का और ये ख़ुद का पेट पाल सकें। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि इनके चाहते हैं कि ये लोग कि इनके बच्चे पढ़ें और वो मुस्तकबिल में अच्छे ऑफिसर्स बने, अच्छे शहरी बने, पुरअमन शहरी बने। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को जराइम पेशा बना दिया है जिसकी वजह से ये लोग हथियार उठाने पर मजबूर हैं। मज़ीद मेरे साथ याकूब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा याकूब, आप ये बताएं कि आपने SP हफीज़ बुगटी की बात की है। यहाँ पर हमने सुना है कि एक चौधरी अज़हर नाम का जो SHO था वो जब भी मुकाबले करने आता था आप लोगों से तो वो कोई पैगाम भेजता था कि मैं सफ़ेद पगड़ी में हूँ। इसमें क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, वो कहता था। क्या कहता था? वो अपने को बचाने के लिए वो उसको तो पता था ये जब बंदूक मारते हैं तो इनका सीधा आकर लग जाता है ना। सही है। तो हम तो फिर जब वो सिपाहियों को कहता था कि सिपाहियों को मारो, लेकिन हम खुदा तो देख रहा था अगर वो इंसाफ हमारा नहीं कर रहा था तो हम वो सफ़ेद पगड़ी पहन कर आ करके ये जो लठ हम कहते हैं बलूच की ज़बान में, वो लठ के ऊपर बंद ये इसके ऊपर खड़ा होता था, फिर इशारा देता था कि पगड़ी दिखाता था मैं अज़हर चौधरी हूँ। तो हम लोग उसको कुछ नहीं कहते थे। तो सिपाहियों के ऊपर तो हम हवाई फायरिंग करते थे। तो जब ये रुबों के साथ हमारा मुकाबला हुआ था, ठीक है, हमारा मुकाबला जिंदानियों के साथ हुआ है। जब जिंदानियों को तो हमने एक को मार दिया था ना, रुबों का हमारे को पता था ये इसने मारा है। बाद में जब 2 जिंदानियों को उस साइड पे उसने खड़ा करके हवाई फायरिंग किए थे और पुलिस वाले को भी वो उसी ने मारा था। उसी ने सुलेमान को यही अज़हर चौधरी ने मारा था पीछे से। अच्छा जी। आप ये कह रहे हैं, आपने ये भी कहा है कि कुछ जो प्राइवेट लोग थे जिंदानी कबाइल के उन्होंने पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी? जी बिल्कुल थे। असलम और मजीद ने पुलिस वर्दियां पहनी हुई थी और वो पुलिस के साथ मौजूद? जी बिल्कुल, जीतरी बंदूक उनके साथ थे। वो अज़हर चौधरी ने खुद हमें जब बताया था। अच्छा। वो मिला हुआ था, वो बताता था जिंदानी उस साइड पे खड़ा हुआ है उसको मारो। तो हमने जब हम तुम्हारा वो दुश्मन था उनको वो साथ में लेकर आते थे, इधर हमको बताते थे और इसलिए तो ये सारा जराइम पुलिस कराता है। अच्छा, आप ये जराइम की दुनिया छोड़ देना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करे? बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं। जब ये काम नहीं करेंगे, डकैतियाँ तो कब से हो रहे हैं ना। जब आके को मार दिया तो सदर दिन में अब भी हो रहे हैं। अगर हमने अब फिर हम जब महीनों के बाद जाते हैं तो वो पुलिस और लोगों से करवाता है।
ऐसा इतबार जब कोई आगे हमें देखे, जिस कस्टडी में या किसी के अफसरों में या इलाके में हम रहेंगे महफूज में, वो हमें दिन रात देखें। डिकेटी तो वैसे भी होते हैं, हर लोग करते हैं। सही है जी, हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं आप अच्छा, आप लोगों को बाकी जितने भी यहाँ पे कोट मुबारक में एसएचओज आए हैं, उनमें से किसी ने कोई ऑफर वगैरह किया कि तुम लोग डकैती करो, हमें पैसा दो वगैरह? जी हाँ, अदर चौधरी वो था, अब्दुल रऊफ, अरशद सियाल, यही करते थे कि तुम डकैती करो, हमको पैसा दो। गफार बिरमानी ने भी कभी कहा है? हाँ, वो भी कहता था कि मेरे इलाके में ना करो, और इलाके में तुम करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपने इनकी ये बातें सुनी हैं। मेरे साथ ये शबीर मौजूद हैं, शबीर लादी। इनके ऊपर भी इस वक्त दर्जनों जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि इनके वालिद को इनके आंखों के सामने कत्ल किया गया, लेकिन ये अपने वालिद के जो कातिल हैं उनको अभी तक ना ढूंढ सका है, ना इनको पता है कि किसने उनको कत्ल किया और उसके बाद ये जराइम की दुनिया में आया। इससे पहले ये वहाँ पर तौसा शरीफ के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। जब पिछले साल इनके वालिद को कत्ल किया गया तो उसके बाद ये बाकायदा तौर पर इन्होंने असला उठाया और ये इस जराइम की दुनिया में आया है। इनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप बताएं, आप लोगों के पिछले दिनों घर गिराए गए थे, तो आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर। आप कह रहे थे कि हमारे घर जो है ये नाहक गिराए गए। जी हाँ। आप चाहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं इनके कोई अगर जिम्मेदारी उठाए, कोई समाजी शख्सियत या सरकार उनको पढ़ाए, तो फिर आप ये जराइम की दुनिया छोड़ देंगे? जी हाँ, हम जराइम की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं भाई। हम हमारे बच्चों को कोई तालीम दे यहाँ पे, हम ना हमारे ना बच्चे महफूज हैं, जो भी बड़ा होगा उसके ऊपर पर्ची दे देंगे। सही है ना पढ़ने के लिए जाते हैं, यारू हमारे दुश्मन है, पुलिस है, जब भी हमारे बच्चे यारू पे जाते हैं उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। मजीद रख मुकाबला कर नहीं, आप क्या कह रहे हैं भाई, आप बताएं। आप ये बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये मुकाबला हमारे साथ था ना जिंदानी गैंग का, लेकिन वो मुकाबला जिंदानी साथ के हमारा था, पुलिस ने लिखा अपने मुकाबले, बिल्कुल हमारा साथ मुकाबला हुआ, लेकिन वो मुकाबले जो पर्चा था वो भी फिर हमारे ऊपर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब्दुल मजीद को मारने वाले कौन थे? मजीद जिंदानी, असलम जिंदानी, वाला रोस्तम जिंदानी, ठीक है, 4-5 बंदे, इज्जा बजानी। अच्छा, पुलिस ने उनको नहीं मारा? नहीं, पुलिस ने उसको नहीं। आपने इनकी बात सुनी है। जो मजीद लादी, जिसको गुज़िश्ता दिनों एक मुकाबले का नाम देकर मार दिया गया, इनके मुताबिक और उनके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी और पुलिस ने उनका क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने उसको मुकाबले में मार दिया, लेकिन इनके मुताबिक उसको मारने वाले पुलिस एहलकार नहीं थे, जिंदानी गैंग के लोग थे और उन्होंने उनको कत्ल किया। और उसके बाद पुलिस ने अपने सर ले लिया, क्योंकि उनके सर की कीमत जो 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। और उसके अलावा इनका ये कहना है कि ये जराइम की दुनिया छोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पुरअमन रहें। और इनका ये भी कहना है कि डकैती की वारदातें जहाँ भी होती हैं वो सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं। आप बेशक हमारे ऊपर जिस किसी को भी निगरानी पर मुकर्रर कर दें, हम शहर का रुख नहीं करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर फिर डकैती की जो वारदातें हैं वो होती हैं, फिर आप लोग खुद सोचें कि वो वारदातें कौन करवाता है, कौन लोग उसमें मुलविस होते हैं। इसीलिए इनका ये कहना है कि पुलिस जब भी डकैतों का सुराग लगा नहीं पाती या उनके जब अपने डकैत गैंग होते हैं, तो फिर उसके बाद जितने भी डकैती होते हैं, जितने भी वारदात होते हैं, वो सब के सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने ना अमीर बख्श बब्बर को कत्ल किया और ना ही किसी और को कत्ल किया। इनका ये कहना है कि सब इन्हीं के खाते में गलत डाल दिए गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर इनसे कुछ भी गलती हुई, अगर इन्होंने कोई वारदात की है, अगर वो सही है, तो वो ये उनका सज़ा भुगतने को तैयार हैं। और इनका ये वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि वज़ीर आला साहब, हम लोग जीना चाहते हैं मगर आज़ादी के साथ, और हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं मगर हमें मजबूर न किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर अपने इलाके में पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकेंगे।